ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ 부ਜਾਈ, ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੋ ਰਜਾਈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਭੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਭੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 32 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁਪੈ ਨਾ ਜੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰੇ ਥੱਲਾਂ ਬਿੰਦੀ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਬ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜ਼ੋਰ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਹਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਹਿ ਤਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਹੈ ਹਾਹਾ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਚੁਪੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਸਾਡਾ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦੀਪਕ। ਡੇਲੀ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਚਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
कितना मैं बोलना है, कितना खाना है, कितना हंसना है, और लेखे वाट चलाइए, कितना मैं पैदल या चलना है, लेखे सुन विखाओ, मैं कितना वेखना है, कितना सुनना है, लेखे शाह लवाइए, पढ़े के पुछण जाओ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ शाह ने ना, ਜਿਹੜੇ मैं साह लै रहा, ये भी लेखे विच ने। मैं लेखे तो बाहर ना मैं साह लै सकना। देखो जितना मैं बोलना है, मैनू परमात्मा ने उस तो ज़्यादा मैं एक अखर भी नहीं बोल सकता। साढ़े इख्तियार कुछ भी नहीं है, साढ़े वस च कुछ भी नहीं है। तां ही गुरबाणी विच बार बार आंदा है, सब किछ तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए। भाई रणधीर सिंह जी होए ने ना, एक बारी अपने मित्र नूं हॉस्पिटल विच मिलन गए, तो बैड ते पे सन, बीमारी गंभीर सी। जद मिलन गए तो कोमा भी चले गए, तो अखीरला समा सी। ते उत्थे जाके भाई रणधीर सिंह जी ने पाठ किया। संगतां ने कहा बोलणगे हुणियां की? कहंदे नहीं, परमात्मा वालों जितना इन्हां नूं हुक्म सी ना बोलण दा, ये बोल बैठे ने। हुण एक अखर भी ये नहीं बोल पाउणगे। तो ये असी डिसीजन लेना है कि जिन्ना सानू बोलण वास्ते क्या है, उहदे विच असी की बोलना है ते की नहीं बोलना। देखो जे मैनू गिन के 10,000 अखर बोलण वास्ते मिले ने, ना एक घट हो सकता है ना वध हो सकता है। ये साडे ते डिपेंड करता है कि असी उन्हां अखरां दी वरतों गुरबाणी विच करनी है कि लड़ाई झगड़ियां विच ते फजूल दीयां गल्लां दे विच असी समय नूं अपनी एलर्जी नूं वेस्ट करना है। तो गुरु साहब इत्थे कह रहे ने कि आखण जोर चुपै नह जोर, ना साडा जोर आखण विच है। जे मेरे कोलों बुला रहा है तो पिछों ओदी सत्या काम कर रही है, कोई जोत काम कर रही है, ना मैं अपनी मर्जी नाल चुप रह सकना। गल ते हासे दी एक मैनूं याद आ गई सामने, बंदा चाहे तो चुप भी नहीं रह सकता। कोई तोतला सी बच्चा ते ओदा रिश्ता होया, ते घर बैठा सी ते पिता ने कहा भाई जद तक रिश्ते की हाँ नहीं होंदी ना ते तू बोलना नहीं है। ते कुड़ी वाले आ गए सामने, ते यही हाल कुड़ी का भी सी, वो भी तोतली सी। उन्होंने भी कह दिता भाई गलबात तुसी वेखना है पर गल नहीं करनी, जद तक हाँ हो जाएगी फिर गल कर लेना। हुण चाह पानी रखिया, वड्डे वडेरे बैठे सन, गल्लां कर रहे सन। ते उन्हां दोनों नूं परिवारां ने बच्ची बच्चे नूं कहा सी कि भाई तुसी बोलना नहीं है, चुप रहना है, तोतले हो तुसी, ये ना होवे इहदे करके साडा रिश्ता बिगड़ जाए। ते चाह पींदे पींदे काफ़ी समा कुछ होया। जद गलबात अगे वधी ते कुदरती जिस टेबल ते वो कुछ खा रहे सन उत्थे कीड़ा आ गया। ते जिहड़ा पुत्र सी ਉਹਦੇ को ਰਿਹਾ नहीं गया, तो उन्हें कहता तीड़ा तीड़ा तीड़ा। तो घर वाली जड़ी वो सामने कुड़ी बैठी सी, कहती ताएं ताएं ताएं। सो कई गल्लां बंदा चुप रह के भी नहीं बंदा चुप रह सकता। क्यों? क्योंकि अपने इख्तियार नहीं है। कई बारी बंदा ऐसी जगह ते लड़ाई झगड़ा कर लैंदा है, बाद विचों कहंदा मैं बोलना नहीं सी। क्योंकि बोलण दे नाल साध संगत बड़े बड़े रिश्तियां दे विच कलवाहट आ जाती है। कहंदे ने शस्त्र दा मारिया उहदा घाव भरिया जाता है, पर बोल दा मारिया वो जिंदगी भर याद रहिंदा है। तुहाडे नाल भी बीतियां होणगियां। कई बारी बंदा सोचदा है कि इस बंदे ने ये मैनू उस वेले ये आख्या सी, ये मैनू भुलिया नहीं है। तो गुरु साहब भी यही कहंदे ने कि माड़े बोल दे नाल पुरानियां तो पुरानियां भी प्यार टुट जाते हैं। टूट प्रीत गई बुर बोल, बुरे बोलन नाल वो परमात्मा नाल भी फिर टुट जाती है प्रीत। दुनिया के रिश्ते भी टुटते हैं। तो तां ही गुरु पातशाह कहते हैं वो परमात्मा ते मिठ बोलड़ा है,
मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संबल थकी जी ओ कदे न बोले कोड़ा, कोड़ा बोल न जाने पूरन भगवाने, ओगन को ना चितारे। वो परमात्मा ते कोड़ा ही नहीं बोलना जानता। इस करके जितने परमात्मा ने सानू बोलण वास्ते किया है, देखो जिथे असी कहने आ बोलिया करो वाहिगुरु वाहिगुरु मनु खिमा कर देना, उत्थे असी बोलते नहीं। तो जिथे साड़ी लोड़ नहीं है उत्थे हट जाओ, कहते ने मनु बोलन दो, मैं बोलन भी सब तो शेर हाँ, मेरी गल सुनो। ये गल असी अक्सर कहने आ। तो गुरु साहब कहते ने तैनू जिहड़ी बोलन की क्षमता, चुप रहने की क्षमता दिती है, उहदे तेरा इख्तियार नहीं है। पर तू इतना गल याद रखी, जे तेरे वस नहीं है तो एक गल दा जरूर याद रखी, बोलन वक्त वो चीज़ बोली जिदे नाल किसे नू ठेस ना पहुँचे, किसे नू दुख ना लगे, ते जिदे विच रब दी गल होवे। तो दूजी पंक्ति विच मारे कहंदे ने जो जोर ना मंगण, मंगण राणा ते सिहारी है, मंगण विच हो गया मतलब देण ना जोर। मारे कहंदे ने असी जो मंग रहे हैं ना उहदे विच भी साडा वस नहीं है, जोर नहीं है, ताकत नहीं, असी मंग भी नहीं सकते। तो किसी नू दान देना चाहिए वो भी नहीं दे सकते। देखो कई बारी असी मंगते मंगते भी रह जाने परमात्मा दे अगे, उहदा भी जोर नहीं है। पता है चीज़ चाहिए है पर साडा जोर ही नहीं, मंगण विच भी जोर नहीं है। महाराज कहते हैं बड़ियां एग्जाम्पल ने, जे तुसी थोड़ा डीप चले जाओ। मैं कल सोच रहा सी, मैं इस पंक्ति दे उत्ते कुंभकर्ण होया। कुंभकर्ण हर एक दी रसना ते जदों रब दा नाम जपदे हो ना, एक आम तौर ते कहा जाता है कि सरस्वती मतलब कि रब दा एक रूप वो तुहाडी रसना ते बैठदा है। तो उन्हें परमात्मा अगे एक तरला पाया, हे परमात्मा, मतलब अंदर मन विच सोचा कि जद रब मेरे नाल मेल होएगा तो मैं एक मंग मंगांगा, वो मंग मेरी पूरी हो जाए। अपनी अपनी सोच है। असी भी सवेरे जागने हाँ, पाठ करने हाँ, एक मंग हुंदी है किसे ना किसे खाने दे विच। कुंभकर्ण नूं जद ये गल होया कि परमात्मा जब सामने परमात्मा दे नाल विचार हुई तो मंगण वाली गल हुई, तो एकदम उन्हें पता की क्या जो इतिहास है बई यह कहना चाहता सी कि मैं 6 महीने जागा तो एक दिन सोवां, मैनूं इन्नी ताकत दवो। पर जदों बोलन लगा तो सरस्वती उहदी रसना ते बैठ गई। हुण बोलण विच उहने की कह दिता कि हे परमात्मा, मैं 6 महीने सुता रवां तो एक दिन जागा। इतिहास है। वो युद्ध के टाइम भी 6 महीने सुता रहा सी, वो सी कुंभकर्ण। तो कहण तो भाव ये वे कि ना साडा बोलण विच जोर है। कई बारी घर विच भी किथे रिश्तेदारी विच भी असी ऐसी गल कर जाने आ, गुस्से वाली, घर आके सोचने आ भाई है तो गल असी बड़ी गलत कर रहे हैं। वो अपने इख्तियार नहीं हुंदा। कई बारी मियाँ बीबी का भी झगड़ा हुंदा है, गल वध भी जाती है, फिर बंदा कई बारी खाली बैठ के भी सोचता है मना ये भी तू गलत किया है। तो इत्थों पता लगता है कि साडे ना बोलण विच जोर है, ना मंगण विच जोर है, ना कोई कई बारी बंदा दान देना भी चाहता है पर वो दे नहीं पाता, क्योंकि जोर नहीं है। जोर सारा उस परमात्मा दे हाथ है। गुरु साहब सिद्धां नूं कुछ इस तरह का ख्याल समझा रहे ने कि भाई दुनिया दे लोगों, ये जिस दिन तुहानूं ये समझ आ जाएगी कि साडे हत्थां विच किसे दे हत्थ भी कुछ नहीं, करन करावन करने जोग जो तिस भाव है सोई हो, जिवें वो कहंदा है उवें ये चीज़ां हुंदियां ने। अज दरबार साहब भी मैं सवेरे जद अमृत वेले हुक्मनामा पढ़ रहा सी ते यही आया सी कि तुद बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक, सब ऊपर पार ब्रह्म दातार, तेरी टेक तेरा आधार।
है ही साडा जोर है ही नहीं तेरे तो इलावा। जिस दिन सानू इस गल की समझ आ गई कि हे परमात्मा साडे हथ बन्ने कुछ नहीं, ते उस वेले असी परमात्मा दे नेड़े हो जावांगे। फिर असी किसे नाल माड़ा बचन नहीं बोलांगे, किसे दे नाल असी ठगी नहीं करांगे, किसे नाल असी धोखा नहीं करांगे। तो गुरु साहब तीजी पंक्ति विच कहंदे ने जोर ना जीवन, देखो राणा ते भी सिहारी है, मरण ना जोर, ना साडा जीवन दे विच ते ना साडा मौत दे विच इख्तियार है। ना असी अपनी मर्जी नाल साडा जीवन होया है, असी आए हाँ संसार दे विच, ना जी रहे हैं अपनी मर्जी नाल, ते ना साडू अपनी मर्जी नाल मौत आनी है। कई बारी मैं ये भी सोचना, असी हर गल ये भी ना कह दिए कि सब कुछ परमात्मा दे हाथ है, मेरे हाथ कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ परमात्मा दे हाथ है, नो डाउट, पर इहदा ये मतलब नहीं कि सारे काम साढ़े कोल परमात्मा ही करा रहा है। ये भी गल है। कोई चोर सी, चोरी करदा सी, फड़िया गया, जज दे सामने पेश किया। जज ने कहा भाई तू चोरी की है? कहना मैं थोड़ा की है, मन ते परमात्मा ने कराई है, सब कराने वाला वो बैठा है। कई बारी ना असी गुरबाणी दियां भी पंक्तियां नूं ना अगे पिछे दी पंक्ति बिना पढ़े बिना समझे असी परमात्मा ते दोष थप देने हैं। कहने चंगा ते माड़ा काम परमात्मा ही करा रहा है। जज सी बड़ा सियाणा, वो अध्यात्मक तौर ते उन्होंने समझ भी सी जज नूं। उन्हें जब चोर की गल सुनी, कहंदा फिर क्या है? कहंदा जी जज साहब जिहड़ी चोरी की मैं नहीं की, मेरे कोलों रब ने कराई है, क्योंकि करन कराने वाला रब है, साडे जीवां दे हाथ कुछ भी नहीं है। जज ने बड़े ध्यान नाल उसकी गल सुनी, ते जद सजा सुनान लगा ते वो चोर कहंदा तुसीं सजा क्यों सुना रहे हो? जे रब ने कराया है, ते चंगा ते माड़ा काम रब ही करा रहा है, तो फिर सजा क्यों लिख रहे हो? कहंदे जिस रब ने तेरे कोलों यह काम कराया ना, उस रब ने हुण मेरे कोलों यह काम करा रहा है कि तैनूं 1 साल की सजा दवावे। तो कहन तो ये मुराद है कि सारियां चीज़ां परमात्मा दे हथ नहीं ने। ऐसियां गल्लां कुछ परमात्मा ने साडे हथ भी छड्डियां ने। मैं अक्सर बेनती करना, रब ने अंगूर बनाए ने चंगे वास्ते बनाए ने ना, हुण उन्हां दी असीं दुरवरतों करके शराब बना दीए ते इहदे विच रब दा ते दोष नहीं है। रब ने कोई चीज़ माड़ी नहीं बनाई, रब किसी दा माड़ा नहीं करदा। ठीक है, असीं अपने कर्मां अनुसार रब उसनूं उहदियां सजावां ते उहदे कर्मां अनुसार उसनूं फल दिंदा है। सारा चीज़ रब दे नूं ना मत दईए कि रब ने ही सब कुछ किया है। भाई जे तेरे कर्म माड़े सन ते तू हुण सवेरे जाके परमात्मा दा नाम ते लै सकना है। हुण मैनूं कई कहंदे ने अमृत छकना जी, उहदा हुक्म होएगा। दसो तुसीं तैयार होके सीसगंज साहब बंगला साहब जाओ तो गुरु साहब मना करनगे? सारियां चीज़ां रब दे हथ ना मल्लो। जदों तुसीं खाना खाना हुंदा है तो यह कह दिया करो जदों गुरु साहब परमात्मा किरपा करनगे तां खावांगे। नहीं भाई, इत्थे सियाणप आ जांदी है। चंगे काम वास्ते गुरु कदी ना नहीं करदा, ते साडा जोर हैगा नहीं है, मन्निया ना साडा जोर जीवन विच ना मरण। मैं अपनी मर्जी नाल मर भी नहीं सकदा। इस वेले कई हॉस्पिटल दे अंदर मौत मंग भी रहे होणगे, पर मौत नहीं मिलती कईयां नूं, और कई जीवन मंग रहे हुंदे ने, उन्हां नूं जीवन नहीं मिलता। ना साडा जोर जीवन दे विच है, ना साडा मरण दे विच जोर है। ना मैं मर्जी नाल संसार विच आया हाँ, ना मैं मर्जी नाल संसार विच विचर सकना वा। हाँ, गुरु नानक पातशाह ने एक सानू रस्ता दिता है। असी चंगे कर्म करके गुरु नानक दे नेड़े हो सकने हाँ।
पिछले पापां दा असी प्राश्चित कर सकने हाँ नाम जप के। तो सारा कुछ परमात्मा दे हत्थ है, पर कुछ साडे हत्थ भी है। रब तो नहीं कहता तुसी 2 बजे सोवो, वो तो कहता 10-11 बजे सो जाओ, सवेरे उठ जाओ। रब तो नहीं कहता इशनान करके बाणी पढ़ो, रब कहता मैनू चंगा नहीं लग रहा। ये साडे मन दियां, ये साडियां मन मर्जियां ने, साडे बनाए हुए ये जिहड़े ढंग ने समय दी चेंज करना। मैं अक्सर बेनती करना वा, असी अपना जीवन एक उल्लू राही बना लिया। उल्लू भी देखो रात नूं उल्लू ही जागदे ने ना, जिहड़े 2-2 3-3 बजे तक जागदे ने, वो सवेरे 4-5 बजे किवें उठणगे। तो सारियां चीज़ां परमात्मा ने तो एक सिस्टम बनाया है, उहदी सिस्टम की उलंघना करांगे तो मैनूं खिमा कर देना, उहदे विच तुसीं भी दोषी ते मैं भी दोषी। ना साडा जीवन दे विच साडा जोर है, ना असी मर्जी नाल मर सकने आ। जितने स्वास परमात्मा ने लिखे ने असी वो भोग के ही जाने ने, पर यह वे कि उन्हां स्वासां नूं असी किस तरह भोगना है, ये साडे पाले विच गेम है। गुरु साहब कहते हैं जे इन्हां स्वासां नूं सत संगत विच बतीत करेगा तेरे स्वास सफले हो जाणगे। जे स्वासां नूं माड़ियां जगह ते जाके माड़े बोल के ठगियां करके लोगों नाल धोखा करके करेगा, वो स्वास तेरे भार चढ़ जाएंगे तेरे सीस ते। तो गुरु साहब अगली पंक्ति च कहते हैं जोर ना राज माल मन शोर। ये भी जिथे दी बोली है उत्थे शोर है। ना साडा किसे राज माल कह लो संपदा साडे, ना असी किसी को जबरदस्ती राज लै सकने हाँ, ना असी संपदा लै सकने हाँ। अज किन्नी भाग दौड़ लगी है संपदा इकट्ठी करन वास्ते, माल इकट्ठी करन वास्ते। अज हर कोई बंदा सवेरे शुरू हो जाता है किसी तरीके माया 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 मनो ना विसरे, मांगे दमा दम। पर मारे कहते ने इहदे विच भी जोर नहीं है। फिर उस राज माल वास्ते कितनियां ही मशक्कत करता है, फिर उहदे विच आण तो बाद फूं फां हुंदी, शोर हुंदा है। शोर नहीं पढ़ना, शोर, शोर तो अखर ही कोई नहीं, शोर तो बाद फूं फां, फिर उन्होंने हंकार आंदा है उस गल का। जदों इलैक्शन हुंदे ने ना साडे इलाके विच, मैनूं याद है बड़ी पहला MP दे इलैक्शन सन ते एक MP आया, हत्थ जोड़ रहा सी सारियां नूं ते वोटां मंग रहा सी। उन्हें इकट्ठ भी किया, असीं भी चले गए, जानकार सी। साडे विच एक बड़े सियाणे वीर जी सन, ते जद विचारां होईयां वो कहंदा सानू वोट पाओ। उन्होंने बड़ी सोहनी गल कीती, सारी पब्लिक भी सी उत्थे। वो कहंदे ने मिनिस्टर साहब तुहाडे ते 5 साल ने, साडे वास्ते ते इक्को ही दिन है। वो कहंदा मैं समझिया नहीं। कहंदे तुसीं इक्को दिन ही साडे अगे हत्थ जोड़ रहे हो, बनन तो बाद ते तुहानूं मिलण वास्ते भी सानूं कई मशक्कत करनी पैनी है, क्योंकि जद तुसीं राज दी ये सत्ता ते बह जाओगे ना, फिर तुहानूं छोटा वड्डा बंदा कोई नज़र नहीं आउणा, क्योंकि उहदा हंकार हो जाता है। तो असी ये भी सोचना है कि जे परमात्मा ने इतना कुछ देता है, असी पिछोखड़ नूं कदी ना भुलीए। कारू बादशाह सी ना, कितनी माया सी, 40 गंज, एक तीर छड्डो दूजा छड्डो, जिथे जिथे तीर जाए 40 गंज माया सी। ते उन्हें अपने राज इत्थों तक माया दे अधीन हो गया कि ये भी कह दिता कि मेरे इस इलाके विच किसे कोल रुपया तो नहीं है, चांदी का रुपया चलता सी। ते उन्हें एक ढंडोरा भी पिट दिता, वो चाहता सी मैं रुपये कढ़ा ला। उन्हें चौंक दे विच अपनी जवान धी नूं खड़िया करके कहता जेड़ा भी कोई रुपया नौजवान लैके आएगा मैं अपनी धी दा साग इस बच्ची नाल कर दांगा। वो तो सिर्फ एक पैसे कढ़ाउण दी एक सोच सी, ते सारे उत्थे पैसा होए तो किसी कोल तां ना। ते वो बच्चा एक जवान सी, उन्हें माँ दे अगे जिद की ते उन्हें कहा कि मनु सिक्का चांदी का चाहिए। वो कहते साढ़े कोल ते खाण नूं रोटी नहीं, तू चांदी का सिक्का। ज़्यादा ही जिद की ते उन्हें कहा जद तेरे पिता नूं
कबर विच दफनाया सी, उहदे मुख दे विच एक चांदी का सिक्का रखिया सी। उन्हें कबर पट के प्यो दी सिक्का लिया के राजे नूं दिता ते ओह ऐलान किया ते राजे ने फड़ लिया। साक की करना सी, रिश्ता की करना सी, उन्होंने मारिया भी, कुटिया भी, पूछया कित्थों लैके आया, उन्हें दस्या मैं पिता की कबर विच। इतिहास विच आया कि उसने सारिया कबरां अपनी उस शहर दियां पटा दित्तियां। जिन्ने भी मुर्दे घरां दे विचों उन्हां दियां डैड बॉडी तो विचों सारे सिक्के कढ ले, भाव कि इतनी राजमाल दी अंदर मन दे विच होड़ सी। ते गुरु नानक पातशाह ने आके उसनूं ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ तीर मार के उसनूं समझाया कि ये जिहड़ा राजमाल है इहदे विच भी तेरा जोर नहीं है। वो चाहे 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मठिया कछ ना संग लै जाए, कुछ नहीं नाल जाना, सब कुछ धरिया धराया रह जाना है। मैं उस दिन भी कहा सी, कोई पॉश कलोनी विचों कोई इत्थे रजौरी गार्डन तो या होर साउथ एक्स तो कोई वड्डी कोठी वाला चला जाता है, उन्हां दियां कोठियां मैं कदी नाल ले जांदियां नहीं वेखियां, उत्थे दी उत्थे ही रह जांदियां ने। तो उस वेले गुरु नानक पातशाह ने कहा, भाई ये सूई लै जा, जिथे लाएगा पारस से सोना बन जाएगी। घर वाली को पुछया, वो कह पर महाराज ने शर्त रख दी कि ये सूई तेरे को असी दरगाह विच वापस लैनी है। घर वाली कहती है, कारू जी ये दरगाह विच कुछ नाल नहीं जाना, तो सूई कित्थों जाएगी। गुरु नानक पातशाह दा समझाउण दा नवेकला ढंग सी। सूई वापस की गुरु नानक नूं, महाराज उत्थे ते कुछ भी नाल नहीं जाना, तो सूई कित्थों जाएगी। उस वेले महाराज ने समझाया, कारू जिहड़ी तू ठगियां मार के लोगों दे खून चूस के गरीब दीन दुखियां नूं दुखी करके तू लोगों नूं इतने कुर तसीहे दे के तू माया इकट्ठी कीती है, तेरे नाल जानी है। समझ आ गई। उस वेले वही माया फिर गरीबां दे विच वंडी दान दिती। तो गुरु महाराज कह रहे ने कि साडा ना राज विच ना माल विच कोई भी जोर नहीं है। वो चाहे भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। वो तो चाहे एक राजे नूं भी भिखारी बना सकता है, शाहजहां वर्गियां नूं भी भिखारी बना दिता। शाहजहां कहंदा सी ना, गुरु नानक देव जी की ये बाणी एवें लिखी है, कदी एक सुल्तान राजा भी कदी घाह खा सकता है। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा। समा भी आया, औरंगजेब जेल तो पिता नूं दिल्ली तो आगरे वास्ते भेज रहा सी, ते राह विच भुख लगी, ते अहलकारियां नूं कहंदा है बई मैनूं भुख लगी। भुख नहीं कहा, उन्हें कहा मैनूं किरिया करनी है। तो उतरिया जदों थल्ले वेख्या ते घाह उगी पई सी, भुख बड़ी लगी सी ते घाह खा रहा सी। उस वेले गुरु नानक दी पंक्ति उसनूं याद आई कि रब दे वस सब कुछ है। भाई साडे हथ सच्ची कहो कि कुछ भी नहीं है, साडे हथ कुछ नहीं, साडा ते सिर्फ शुकराना बंदा है। महाराज ने एक शब्द विच मैं कल वेख रहा सी कि कीता करना सर्व रजाई किच कीचे जे कर सकीए। साडे हथ कुछ भी नहीं जे कुछ असी कर सकीए। अपना कीता कछू ना होवे, ज्यों हर भावै त्यों रखिए। साडा कीता कुछ नहीं होना, जिवें उस परमात्मा ने सानू रखना है असी उवें रखना रहना है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, हे मेरे हरि, हे परमात्मा, हे रब जी, हे वाहेगुरु, हे गॉड, मेरे हाथ कुछ भी नहीं, सब को तेरे वासे। असां जोर नाही जे किच कर हम साके, जो भावें तिवें बख्श। असी ते बस बैठ के यही अरदास करनी है, सतगुरु सब कुछ तेरे हाथ है, ते हुण जिवें तैनूं चंगा लगे उवें रख, सानू बख्श लै। तो गुरु साहब कहते ने ना साडा जोर राज विच ना धन संपदा विच, जिवें उन्हें जिन्नी देनी है, जिन्ने समा देनी है उन्ना ही असी लै सकने हैं, उस तो वाधू नहीं लै सकते। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, ज्ञान दे विचार वाली सुरती कह लो, बिना भी ये ज्ञान उस परमात्मा की बख्शिश तो बगैर नहीं आ सकता।
ये भी साडा जोर नहीं है। सारे ज्ञानवाद नहीं ने, सारे मूर्ख भी नहीं ने। जिन्हों ज्ञान बख्शदा है, क्योंकि महाराज ने एक जगह ते क्या है, जब अपनी जोत खींचे तू स्वामी तब कोई करो क्या दिखा विख्याना। जे अंदरों सत्ता ही खिंच ले तो कोई अपनी विचारां दा विख्यान किवें कर सकता है। तो इत्थों ये समझ आती है, जे कोई विचार भी करता है वो मन च ये गल ना लियाए कि मैं विचार कर रहा हाँ, विचार करन विच भी सत्या उस परमात्मा दी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं यही ते कहा सी, किसी ने कह दिता कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी सूरज नूं पूजदे ने। महाराज कहंदे ने बाणी ध्यान नाल पढ़िया करो, मैं सूरज नूं नहीं पूज रहा, मैं सूरज जिहड़ा जिन्नू सूरज ने परमात्मा ने जिस सूरज नूं जोत दिती है मैं उसनूं पूज रहा। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद चंद्रे, नमो भान पाणे, नमो मान माणे। जिस सूरज नूं ही सत्या दिती है, अगर वो जोत खिंच ले तो सूरज भी किसी कम्मे दा नहीं है। मैं तो उन्होंने पूजना मैं, जे भावें वो कीड़ा है तो भावें वो मनुख है जिदे विच परमात्मा दी जोत है, मैं उसनूं नमस्कार कर रहा। महाराज मंत्रां नूं भी नमस्कार कर रहे हैं, महाराज भूतां नूं भी प्रेतां नूं भी नमस्कार कर रहे हैं। इहदा ये मतलब नहीं है कि गुरु साहब भूतां दी पूजा कर रहे हैं, गुरु साहब प्रेतां दी पूजा कर रहे हैं। गुरु साहब उहदे विच जिहड़ी जोत काम कर रही है, गुरु साहब उहनूं नमस्कार कर रहे हैं। तो इत्थे मारे कहंदे ने अपनी ज्ञान दी सुरती, विचार वाली सुरती विच भी साडा जोर नहीं है। तो खीर विच महाराज कह रहे ने, जिस जोर ना जुगती छुटे संसार, बिना संसार दा छुटकाना भी पाउण वाली जुगती विच भी जोर नहीं है। कई बंदे चाहते ने कि मैं संसार ना छड्ड दवां, ये बंधन मैं तोड़ दवां, ये मोह माया दे बंधन छड्ड दवां, मैं परमात्मा दे नाल लग जावां। क्योंकि जो जो बंदा संगत करता है ना, उन्होंने ज्ञान होंदा है, वो चाहता है मैं उन्हें संसार दे बंधनां विचों मुक्त होवां। पर महाराज कहंदे ने उहदे विच भी जोर नहीं है साडा। वो परमात्मा चाहे रोज़ पढ़ने सतगुर सिक्के, बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हाटे। जदों परमात्मा चाहुंदा है उदों ही बंधन कट्टे जांदे ने। असीं उहदे अगे बेनतियां कर सकने आ कि संसार दी पकड़ हटा दो। देखो गुरु नानक पातशाह ने संसार करके रब नहीं छड्डिया ते रब करके संसार नहीं छड्डिया। असीं संसार करके रब नूं छड्ड दिंदे आ ते रब करके संसार नूं नहीं छड्डदे। साडी और गुरु नानक पातशाह दी ये साडी विलक्षणता है। महाराज विच ये एक बख्शिश सी, उन्होंने संसार करके परमात्मा नूं नहीं छड्डिया ते परमात्मा करके संसार भी नहीं छड्डिया। एक बैलेंस बना के महाराज ने संसार विच विचरे। तो गुरु साहब कहते हैं अपनी जोर नाल असी संसार की पकड़ भी नहीं छड़ सकते। जिस हाथ जोर जिहदे हाथ विच हत्थे नूं सिहारी है, जिहदे हाथ विच ये जोर है वो कौन है? परमात्मा। कर वेखे सोए, ਉਹੀ परमात्मा साड़ी संभाल कर रहा है, जिहदे हाथ विच सब कुछ है। नानक उत्तम नीच ना कोई। इस करके किसी नूं उत्तम या नीच ना कहो। सारे परमात्मा दे बनाए जीव ने। वो परमात्मा जिन्हें जिन्हें जेड़े जेड़े कर्म कीते हुंदे ने उस मुताबक उन्हां नूं संसार दे विच भेज के उन्हां कोलों एक कर्म करवांदा है। पर वो जीव परमात्मा कोल पहुंच जाते हैं जेड़े परमात्मा दा कहना मन के, जो सतगुरु दे भाणे दे विच रह के सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे आवे अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ छोटा खावे। पर जेड़े गुरु दे भाणे विच रह के गुरु दे सन्मुख होके जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई जियों रहे गुरु नाले। गुर के चरण हिरदे ते आए अंतर आत्मे संभाले। करना की आप छड़ सदा रह परने, गुर भी नवर न जाने कोए। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जेड़े गुरु दे सन्मुख होके वो इस संसार बाजी चो जिच जाते हैं, और जेड़े गुरु दे सन्मुख नहीं होंदे वो फिर इस संसार दे सारे झमेलियां विच पै के जन्म मरण दे गेड़ विच पे रहिंदे ने। तो गुरु साहब कहंदे ने साडे विच किसे विच जोर नहीं है, सब कुछ परमात्मा दे आपे भांडे साजियन आपे पूरण दे। एक नहीं दुध समाइए
एक चूल्हे रहन चढ़े। ये सारे भांडे जिहड़े ने ना, जिस तरह भांडे कोई बनांदा है कुम्हार, ये उहदे साजे होए ने। कुम्हार रब है, असीं सारे उहदे भांडे हाँ। पर कई भांडे दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ पे ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, पर साडे वर्गे कई लोह ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ पे ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, भाव सारी उम्र सड़दे ही रहंदे ने। एक नहीं दुੱਧ समाईए, एक चूल्हे रहन चढ़े। भांडे असीं सारे ही आ रब दे, पर कई वो भांडे दुੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ कई भांडे तुसीं दुੱਧ वाले रखे हुंदे ना, वो हमेशा दुੱਧ ਵਿੱਚ पे रहंदे ने, भाव कि आनंद ਵਿੱਚ रहंदे ने। ते कई ऐसे भांडे तुहाडे घर होणगे ਜਿਹੜੇ सदा लोह ते रहंदे ने। उन्होंने तुसीं कदी चाह भी उहदे ते बनानी, बड़ियां चीज़ां उहदे ते बनांदे ने। महाराज कहंदे ने एक नहीं दुੱਧ समाईए, एक चूल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन, एक ऊपर रहन खड़े। एक कई तलाइयां विच रजाइयां विच सुत्ते पे रहंदे ने, आनंद विच ने। ते कई उन्हां दी चौकीदारी कर रहे हुंदे ने। देखो है उही जीव ने, पर महाराज कहंदे ने एक निहाली पै, एक रजाइयां तलाइयां विच आराम कर रहे हुंदे ने। जिस तरह तुसीं संगत विच कर रहे हो ने, रजाई तलाई विच एक आनंद लै रहे हो। ते कई इस वेले तड़फ रहे हो रहे हैं। कई तुहाडी उत्ते रजाई जिहड़े आराम करते हैं, उन्हां दे उत्ते उन्हां दी नौकरी कर रहे हुंदे ने। तो महाराज कहंदे ने तिन्हां सवारे नानका जिनको नदर करे। पर जिन्हां नूं ये प्रभु परमात्मा सवार लैंदा है, उन्हां दे उत्ते नदर करदा है। तो असीं सतगुरु दी नदर दे पात्र बणीए। सानूं ये ज्ञान हो जाए कि साडे जीवां दे हत्थ कुछ नहीं है, पर जे असीं बेनती अर्जी प्रार्थना गुरु दे चरनां विच रखांगे ते असीं परमात्मा दीयां खुशियां प्राप्त कर लवांगे। इतनी सेवा प्रवान करनी ताकि असी अपने जीवन दे विच ये वरत सकीए। सारियां दा धन्नवाद। गुरु साहब किरपा करन, रहमतां वरतान, भुल्लां चुक्कां दी खीमा, फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।